নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংকেত মিডিয়া, সোজা কথা সহজভাবে। নমস্কার, সংকেত মিডিয়ায় আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত। আজ 15ই জানুয়ারি, পৌষ বা মকর সংক্রান্তির যে দিন সেটা আজকে, যদিও তার যে পুণ্য লগ্ন বা মাহেন্দ্রক্ষণ সেটা একটু আগে শেষ হয়ে গেছে। কারণ আমরা জানি গতকাল সন্ধ্যে 6:53 থেকে আজকে সন্ধ্যে 6:53 অবধি মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এই একটু আগে শেষ হয়েছে এবং তারপরে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি একেবারে কপিলমুনি মন্দিরের মধ্যে। এবং এইখানে আমরা এমন একজনকে পেয়ে গেছি যাকে দেখলেই বোধহয় একটা অন্যরকম ভালো লাগা, একটা শ্রদ্ধা ভেতরে আসে। এমন একজনকে পেয়ে গেছি যিনি প্রত্যেক বছর অযোধ্যা থেকে তার গুরুজিকে নিয়ে এখানে চলে আসেন। টোটাল একটা টিম, তারা সবাই মিলে চলে আসেন। হ্যাঁ, আপনি যান। ইন্টারভিউতে একটা ছোট্ট বিরতি পড়বে, কারণ এই আমি একটু আগে বললাম যে তিনি তার গুরুজিকে নিয়ে এসছেন। গুরুজির ঘন্টা কিন্তু বেজে গেছে, আর ইনি এমন একজন শিষ্য যিনি পৃথিবীর সবার আগে গুরুজিকেই স্মরণ করেন। একটু আগে গল্প হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন যে আমার কাছে সব কিছুই আমার গুরুজি, আসবো উনি ফেরত এলে। আমরা ঠিক যেখানটায় শেষ করেছিলাম ওইখান থেকে শুরু করলাম। কারণ এই যে একটু আগে বলছিলাম যে ইনি এমন একজন শিষ্য যিনি গুরুজির বাইরে গোটা পৃথিবীতে আর কিছু দেখেন না। তার সাথে গল্প হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন গুরুজি তার কাছে সব, গুরুজি তার কাছে ভগবান, গুরুজি তার কাছে পিতামাতা, গুরুজি তার কাছে পৃথিবী। ঘন্টা বেজেছিল, তিনি উঠে গেছিলেন, কারণ গুরুজি খাচ্ছিলেন। খাওয়া শেষ হয়েছে, তিনি সেটা দেখতে গেছেন। আমরা একটু আগে ভিডিও করলাম, ওনার পারমিশন ছাড়া ভিডিও করলাম, যে উনি গুরুজির থালাটাও কিন্তু নিজে হাতে করে নিয়ে এসে রাখলেন। আজকের যুগের এটা দেখানোর উদ্দেশ্য একটাই, যে আজকের যুগে যেখানে মানুষের মধ্যে অবক্ষয় রয়েছে, সমাজ কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই ধরনের মানবিকতা, এই রকম স্পিরিচুয়াল লেভেল বিরল, বিরলতম থেকেও বিরল। এইরকম একজন মানুষকে আমরা পেয়ে গেছি, যিনি শুধু সন্ত নন, শুধু মহানজি নন, তার সঙ্গে তার মধ্যে যে মানসিকতা, তাকে দেখলেই তার একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা তৈরি হয়। আর আমি কথা বাড়াবো না, সরাসরি তার কাছে চলে যাব। হনুমানগড়ি আখড়ার এখন যিনি দায়িত্বে, আমরা জানি যে প্রধান গুরুজি মহন্ত জ্ঞানদাসজি কিছুদিন আগে জানিয়ে দিয়েছেন যে তারপরে তার যে পরম্পরা, সেখানে সেই পরম্পরাতে এরপরে दायित्व नेबेन जिनी श्री महंत संजय दास जी। पहले आपको प्रणाम। जय हो। गंगा सागर मेला खत्म होने वाला है, क्योंकि जो टाइम जो है वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी पुण्यार्थी लोग आ रहा है। तो इस बार का जो महेंद्रखंड तो खत्म हुआ, तो इस बार ये गंगा सागर मेला कैसे रहा, आपके हिसाब से कैसे रहा? सर्वप्रथम तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज, कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे संसार के जीव गुरु के चरणों में समाहित हैं, और इस गंगा सागर धाम, कहा गया सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सारी नदियाँ, जितने भी सूखी नदियाँ हैं, सभी नदियाँ समुद्र में आके मिलती हैं, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सरजू हो, घाघरा हो, कावेरी हो, यमुना हो, सभी नदियाँ समुद्र में आके मिलती हैं। और यहीं पर वो जगह है ये कपिलमुनि भगवान का, जहाँ पे राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे। फिर स्वर्गलोक से चल के माँ गंगा इस धरा पर आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्त पिलग्रिम्स यहाँ आते हैं आचमन करने के लिए, स्नान करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित सभी नदियों का पुण्य एक जगह है, वो गंगा सागर में मिलता है।
इसीलिए कहा गया सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा कहावत है कि यहाँ पर आके नहाएंगे तो पाप जो है वो धो जाते हैं, और भगवान कपिल मुनि के पास एक बार माथा ठिकाते हैं तो पुण्य मिलता है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? निश्चित है, भगवान कपिल मुनि जी के श्राप से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हुए थे। तो माँ गंगा को स्वर्ग से चल के यहाँ पे आना पड़ा और उनका उद्धार करना पड़ा। तो यहाँ दोनों लाभ मिल जाते हैं। भगवान कपिल मुनि जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं, उनके भी चरण का रज मिल जाता है, और माँ गंगा में स्नान करके श्रद्धालु अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। देखिए, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि भगवान कपिल मुनि का क्रोध बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी जिन लोग ये चला रहे उसके अंदर में अभी परंपरा में आपको ऊपर वो दायित्व तो उसका जो ड्यूटी उसका आपके ऊपर में है। आप तो काफ़ी कूल एंड काम है, एकदम देखने में ही लगता है कि बहुत शांत। तो ये जो डिफरेंस है, अंतर है कपिल मुनि जी का जो क्रोध है और आपका अंदर में जो शांत स्वभाव है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? भगवान कपिल मुनि भी तपस्या में लीन रहते हैं, लाखों लाख वर्षों से तपस्या में लीन थे उस समय, और इतना ज़्यादा तपस्या से उनके अंदर, उनके शरीर से इतना ऊर्जा उनके अंदर था कि जिस समय राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, अश्व को ढूंढते हुए पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में ढूंढते हुए, और यहाँ पर जब पहुँचे गंगा सागर, तो उन्होंने देखा कि कोई संत, कोई भेष में कोई बैठा हुआ है और उसके पीछे अश्व जो है वो बंधा हुआ है। तो जो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उनको लगा कि कोई ऐसे संत है ढोंगी जो कि इस तरह से अश्व को बांध करके और नेत्रों को बंद कर लिया है। तो अपशब्दों का प्रयोग भी इन लोगों ने किया, लेकिन जब अपशब्दों का प्रयोग इन लोगों ने किया तब भी उनका ध्यान नहीं टूटा। बहुत कुछ उन्हें, मुनि जी को बोला गया उन लोगों के द्वारा। तब उनका जब नेत्र खुला, तो इस उद्देश्य से उन्होंने नेत्र नहीं खोला था कि वो भस्म हो जाए, लेकिन इतना तेज था उनके अंदर, इतनी सहनशीलता, इतना विनम्रता, इतना जो है तपस्या का प्रभाव था कि उनके नेत्र की ज्योति खुलते ही वो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो जल के वहाँ पे भस्म हो गए। तब इनके पूर्वज भागीरथ जी आए और ढूंढते हुए कि हमारे पितरों का कैसे उद्धार होगा। फिर भगवान कपिल मुनि के आश्रम में आए और पूछे कि प्रभु, हमारे पूर्वज का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक ले स्वर्ग से गंगा जी नहीं आएंगी तब तक ले उद्धार संभव नहीं है। तब फिर उन्होंने तपस्या किया लाखों लाख वर्ष तक, और माँ गंगा को प्रसन्न किया, और उसके बाद माँ गंगा स्वर्ग से चल के इस धरा पे आई और उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, और आज जीव मात्र का उद्धार कर रही हैं। देखिए, मेरे को ये लगता है कि एक महंत जी, एक संत जी का खाली ये काम नहीं है कि तपस्या करे, पूजा करे, ये भी काम एक है कि समाज को सुधारने के लिए कोशिश करे। जैसे मैं देखा, मैं पहले जो बोल रहा था बांग्ला में, ये बोल रहा था कि आप खाली महंत जी है, संत है, ऐसा नहीं, आप एक ऐसा शिष्य है जो एक दृष्टांत स्वरूप हो गया। आज की दुनिया में, समाज में कोई किसी को मानता नहीं। समाज का जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी कुछ खराब चीज़ घुस गए। तो ये कैसे सुधरेंगे? ये तो काम आप लोग का ही है। आप लोग कर सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते, समाज में और कोई कर नहीं सकते। अगर कोई कर सकते, ये सालों साल, 1000 साल से ये चल रहा है कि अगर कोई समाज को बदलाएगा तो संत महंत जी नहीं बदलाएगा। तो ये आप कैसे इसको चेंज करेंगे? जो आपके अंदर में है वो कैसे आप समाज के अंदर में कैसे देंगे? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। किसी भी चीज़ पे जो है आप धूप में रख दीजिए, ऐसे जगह रख दिए, तत्काल पिघलने लगता है। वो दूसरे के मार्गदर्शक के लिए ही होता है। भगवान के चरणों में भक्ति भाव, आस्था, पूजा, श्रद्धा जो भी, तो इसीलिए करते हैं कि दूसरे, हमारे अंदर वो ऊर्जा हो, मेरे अंदर ऊर्जा ऐसी हो, और हमारे जितने भी भक्त, अनुयायी, श्रद्धालु हैं, दीनहीन हैं, गरीब, असहाय, निरीह लोग हैं, उनके उत्थान के लिए हम कैसे
कार्य करें कि जिससे उनका उत्थान हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोटी मिले, उनको वस्त्र मिले, उनको रहने के लिए मकान मिले, जो स्वच्छता मिले, सफाई सुथरा मिले उनको, और वो निरंतर आगे बढ़ते रहें और उनके अंदर ऐसे संस्कार दिए जाएं जिससे वो भी किसी दूसरे को ऐसे संस्कार दें जिससे कि ये पता चले कि ये अच्छाई है, ये बुराई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम संतों का तो कार्य ही है लोगों का मार्गदर्शन करना, चाहे वो गरीब हो, असहाय हो, निरीह हो, अबला हो, कैसा भी हो, उनका काम ही है उनके उद्धार के लिए काम करना चाहिए। तो मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि जीव के उत्थान के लिए जो भी हो सके, एक संत का ये दायित्व बनता है जीव के उत्थान, चाहे किसी प्रकार का जीव हो, उसके लिए अगर चींटी भी दिखाई दे रही है, अगर पैर के नीचे दबने की संभावना है तो उसको बचा के निकल जाना चाहिए, उसको साइड करना चाहिए, ऐसा संतों को कहा गया है। देखिए, ये तो कली युग चल रहा है। कली युग में एक कहावत है कि ये खराब होना ही है, और ये भी कोई कोई आदमी बोलते हैं कि कली युग का खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है? कलयुग का प्रभाव है, लेकिन संत इसीलिए होते हैं कि जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग पे लाया जाए, सही मार्ग पे ला करके उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, जिसकी वजह से आज के टेक्नोलॉजी और सब चीज़ों के हिसाब से जो रास्ता भटक रहे हैं, आप देख रहे हैं कंप्यूटराइज का ज़माना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए रास्ता अलग जा रहे हैं, उन्हें सही मार्ग पे लाने के लिए ही संत हैं। वास्तव में जो संत सही हैं तो, नहीं तो ऐसे बहुत से संत के भेष में कालनेमी भी हैं। संत के भेष में कालनेमी भी आप स्वरूप में सिर्फ उनको देखेंगे, लेकिन अंदर क्या है वो परमात्मा जानता है। जब उनका ढोल का पोल खुलता है ना, तब पता चलता है वो संत है कि कालनेमी है। मेरा अंतर का जो बात था वो आप कैसे समझ के पता नहीं है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करने वाले थे कि हम लोग जो देखते हैं महंत संत जी को, कोई ऐसा है कि जो है ही नहीं, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? आम आदमी कैसे पहचानेगा कि कोई ओरिजिनल संत है, कोई महंत है? कोई तो हम लोग आम आदमी तो उनके पास चले जाते हैं और बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है, तो ये कैसे हम लोग पहचानेंगे? संत का जो है, जो स्वरूप होता है, जो उनका तेज होता है, जो उनके चंदन तिलक होते हैं, जो उनके वस्त्र होते हैं, जो उनके बोलने की शैली होती है, अंदर से कुछ और दिखावा, फ्रंट पे कुछ और, वो सब एक समान होता है। संत के आश्रम है अगर, तो आप निर्विवाद रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, अंदर से लेके बाहर तक देख सकते हैं इसका कैसा लक्षण। जिस तरह से एक मनुष्य के हृदय में की भावनाओं को व्यक्ति पढ़ लेता है, इसी तरह से संत का आश्रम जो होता है उसका एकदम खुली किताब है, निर्मल होता है। जिस तरह से आप अगर नदी में पानी अस्थाई दे दिया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए कहा गया संत को विचरते रहना चाहिए। और निर्मल अगर जल कंटिन्यू बह रहा है तो वो स्वच्छ रहेगा, लेकिन अगर एक जगह अस्थाई हो जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग गुरु के सानिध्य में हर निश 24 घंटे अनवरत उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं। कभी जब उनका आदेश हो जाए, जब उनकी घंटी बेल बज जाए तो भी उपस्थित है, और हमेशा प्रभु के उसमें चिंतन मंत्र, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए। जब इन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो गलत जगह पे हमारा मन मस्तिष्क जाएगा ही नहीं। जैसे आपके पास में बैठेंगे तो आपका जो ऑरा है ना, वो पास में बैठने से उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, मन अच्छा हो जाता है, खुश मिलता है। लेकिन सब महंत जी का पास बैठने से कि उसका पास में जाने से वो नहीं होता है, वो फीलिंग नहीं आता है। जो फीलिंग आपके पास में बैठने से होता है, जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलता है, सुख तो मिल ही जाता है लेकिन शांति नहीं मिलता इस दुनिया में। जो आपके पास में बैठने से वो शांति मिलता है ना, तो वो हर संत जी, हर महंत जी के पास नहीं मिलता है। तो ये किसके पास मिलेगा, कैसे पता चलेगा आम आदमी को? जैसे मेरे कहने का मतलब, मैं अगर संत हूँ या जो भी संत जिसके पास आप जा रहे हैं, हम लोग पहचानेंगे कैसे? हाँ, उसको उसके नज़दीक आप पहुँचेंगे तो उससे जैसे होता है कि इंसान को जरा से भी उसको डर लगने की आवश्यकता नहीं है। एक होगा कि अभी मिलेंगे गुरुदेव से डांट देंगे, हमें इंटरव्यू लेना है महंत जी का, और कहीं ऐसा ना हो रुष्ट हो जाए, नाराज़ हो जाए, उनका समय नहीं हो। संत का हृदय एकदम पवित्र होता है। आप कभी भी 24 घंटे एनी टाइम कभी भी आप उनके सामने आ सकते हैं, मिल सकते हैं, और उनके मुख से जो भी शब्द निकले बहुत सहनशीलता के साथ निकलना चाहिए,
जिसके लिए अगर वो टाइम भी देते हैं आपको कि आप फला टाइम आइए, थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट इधर उधर लेट हो गया तभी उन्हें उसका कोई पछतावा नहीं, आइए ठीक है कोई बात नहीं। अगर वहाँ पर हम एक दो शब्द आपसे टाइट बोल देंगे तो शायद आप जाते जाते ये उसके आपके मन मस्तिष्क में रहेगा कि महाराज जी गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, कहीं ऐसा ना दोबारा फिर जाऊँ उनके अंदर उनके पास में तो उन्हें गुस्सा आ जाए, नाराज़गी हो जाए, तो आपका हृदय हमेशा विचलित रहेगा। नज़दीक आने की चेष्टा करेंगे लेकिन अंदर से एक डर बना रहेगा आपके अंदर। वो चीज़ें हमारे द्वारा आपके प्रति नहीं होना चाहिए, तभी आप हमारे सन्निकट आ सकते हैं निर्विवाद रूप से, निष्काम उसके साथ आ सकते हैं आप मेरे पास नज़दीक। ये आपके दिमाग में कुछ रहेगा नहीं कि एक कंपलसरी जिस तरह से एक आम व्यक्ति बैठ के बात कर सकता है, ऐसे महाराज जी के साथ हम बात कर सकते हैं। ये जो गंगा सागर का जो मेला ख़त्म होने वाला है, इस बार जो व्यवस्थापना था सामाजिक, जो गवर्नमेंट ने जो किया है, आपको क्या लगा, कैसा लगा? आप अयोध्या से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, यहाँ पर दूसरा हैं, बहुत श्रद्धावान हैं, बहुत श्रद्धालु हैं और सच्चे हृदय। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे ही हैं और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जो इनका दायित्व तो दिया जाता है वो एकदम अच्छे से ये लोग करते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बहुत चाक चौबंद है, बहुत अच्छी है। और हर व्यक्ति के सहूलियत के लिए आप लाइट की व्यवस्था, लाइट के कलर की व्यवस्था, उसमें नंबरिंग है कि आप किस रूट पे जाएंगे, कहाँ गंगा घाट पे पहुँचेंगे, 2 नंबर पे जाएंगे कहाँ पहुँचेंगे, 3 नंबर पे जाएंगे ये व्यवस्था श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए दी गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो और वो जहाँ से जाएं वो जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो दी गई हैं वो बहुत अच्छा है। सीएम ममता बनर्जी तो हर बार आती है यहाँ पर, तो इस बार भी तो आई है, इनॉग्रेशन करके गए हैं, तो उन्होंने क्या बताया? वो तो राज्य सरकार की व्यवस्था ही है तो कर ही रही हैं। वो तो लोगों की भावनाओं को लेकर समझती हैं कि कैसा आपको लग रहा है, या उनके पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा जानकारी चाहती हैं और अदर जगहों से भी जानकारी करती हैं कि क्या जो है व्यवस्था सही है कि नहीं है, जिससे कि हम और उसमें 4 चांद लगा सकें। यहाँ का जो एमएलए है, अभी मंत्री हुआ है बंकिम चंद्र हजरा, वो हर बार रिस्पेक्टफुल है आपके लिए, आप लोग के लिए, तो उन्होंने क्या आप लोग के साथ कोऑपरेट करते हैं? हाँ, वो तो बहुत नेक इंसान हैं, बहुत सज्जन हैं और वो उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ना किसी से उनका राग द्वेष, न ईर्ष्या, न जलन। जिसके जो कार्य हो सके हमसे उस करिए गरीबों के लिए, ऐसा उनका विचार रहता है हमेशा। बहुत प्यार करते हैं उन्होंने। एकदम सज्जनता, किसी का अभिमान, किसी का दम्भ कुछ नहीं, एकदम सरल स्वभाव। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। एक साधा इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। पहले तो इंसान, उसके बाद तो सब कुछ। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए ताकि एक मिनिस्टर होते हुए भी उससे एक साधारण व्यक्ति भी आम नागरिक की तरह मिल सके। ऐसा वो बंकिम हाजरा हैं। सही बात। आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। चाइल्डहुड मतलब आपका जो बचपन कैसे रहा? मेरा बचपन जो है रेसलिंग, कुश्ती, रेसलिंग समझता है? हाँ, कुश्ती करते थे, ये तो पता है। कुश्ती करते थे। हाँ। ठीक है। तो कुश्ती फिर छोड़ दिए क्यों? कैसे इधर का साथ नाता जोड़ा? नाता तो बचपन से ही गुरुजी के सानिध्य में था और गुरुजी भी कुश्ती लड़ते थे। मेरा भी कुश्ती के प्रति झुकाव था। गुरुजी को लगा ऐसा कि कुश्ती में इसका रुचि है, इसलिए हमें 10 साल के लिए दिल्ली भी छोड़ दिए थे कुश्ती के लिए। फिर वहाँ पर नेशनल लड़ा, सीनियर में, जूनियर में, और धीरे धीरे जो है फिर विदेश भी जाने का प्रोग्राम बना, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान है और नहीं जा पाया। ये 92, 93, 95 की बात है। उसके बाद गुरुजी बोले कि संत परंपरा में रहना है, इसलिए जो है आश्रम पे भी कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए इधर आ जाओ। फिर गुरुजी के साथ में फिर रहने लगा। धीरे धीरे व्यवस्थाओं में आ गया, फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ गईं, फिर धीरे धीरे जो है उधर जो कुश्ती रेसलिंग क्षेत्र का वो फिर छूट गया। फिर भी अभी एक्सरसाइज वगैरह और चीज़ें करता हूँ। कितना उम्र में घर छोड़ के इधर में आए? बहुत छोटे थे, अभी उम्र का तो नहीं, लेकिन बहुत छोटे थे। कभी घर का बात याद नहीं आता है?
अब माता पिता भाई बहन सब हैं, वो घर पे रहते हैं, हम इधर विरक्त हो गया, संत हो गए, तो अब उनसे ज़्यादा संपर्क रखेंगे नाता तो ममता लगेगा, इसलिए दूरी रहना ही अच्छा है। एक बार मैं ऐसे सुना है लास्ट ईयर में हम लोग की इंटरव्यू करके गए थे, ऐसे सुने हैं कि आप एक बार रास्ता से जा रहा था गुरु जी के साथ, मम्मी को देखी है आप, तो याद आया था उस टाइम में। नहीं, वो जा रहे थे उधर गोरखपुर साइड में जा रहे थे, और मेरा घर हाईवे पे ही NH पे पड़ता। अभी वो इधर नहीं आ पाते, ये ज़्यादा गुरुदेव में इसी में सब समाहित, तो मम्मी पापा सब लोग समाहित। गुरु जी भी बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो इसलिए जो उनके एक सेकंड के लिए तो उनसे दूर हो ही नहीं सकते ना, यही मजबूरी है। उनसे बोल भी रखे हैं कि आप लोग हमसे अपेक्षा मत करिए कि मतलब बाकी और जो हमारे भाई अधिकार बनता है। Subscribe our channel, press the bell icon.